Good morning, students. Now we continue our chapter 12 wave theory, and we started a next topic, analytical treatment of interference. In analytical treatment of interference, we studied about the interference phenomena, and inside it we evaluated the resultant amplitude of the two waves and also the phase difference between them. So let's start this analytical treatment. So for this we take one source S and convert it into its two coherent sources by the Young's principle. Young says that one source can be divided or can be converted into the two sources, and these two sources becomes coherent. Okay, so here S1 and S2 are the two coherent sources, and these waves S1 these waves are reaches at point P or superposed at point P on the screen by traveling the distance x and x plus delta x respectively. Okay, so now for the first wave, and these waves becomes electromagnetic waves. जो ये वेव हम कंसीडर कर रहे हैं, these waves are the electromagnetic waves. और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो इक्वेशंस होती हैं, उन इक्वेशंस को हम यहाँ पर राइट डाउन करते हैं. तो फॉर द फर्स्ट वेव E1 equals to EM1. EM1 is the amplitude. This is sine kx minus omega t. This equation represents that the wave traveling in the x direction. Okay, this wave traveling in the x direction. kx minus omega t means positive x direction में ये वेव आपकी ट्रैवल कर रही है. Okay, now the second equation for the wave E2 equals to EM2 sine. अब here we see that k, the traveling distance is x plus dx, so then kx plus delta x minus omega t. Then this is your second equation. So by superposition principle we add them. So by superposition principle E equals to E1 plus E2, then E1 is EM1 sine kx minus omega t, and E2 is EM2 sine kx plus k delta x minus omega t. Okay, so these are the two equations जो सुपरपोज्ड हो चुकी हैं आपस में. तो इस इक्वेशन में हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं. दिस इज EM1 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस EM2 sin, अब kx और ओमेगा टी को हम एक साथ ले लेते हैं, देन माइनस ओमेगा टी प्लस k डेल्टा x. ओके, तो अब इस जो इक्वेशन हमारी है EM2 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस k डेल्टा x, यहां पर इस k डेल्टा x को हम फाई कंसीडर करते हैं. तो सपोज या हियर k डेल्टा x इक्वल्स टू फाई. तो हमारी इक्वेशन नेक्स्ट क्या बनी अब, E इक्वल्स टू EM1 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस EM2 sin kx minus omega t plus phi. This one our equation, electric field equation. Okay, तो जब हम यहाँ पाथ डिफरेंस की बात करते हैं, अब सबसे पहले तो हम इसको क्या करते हैं, sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस phi को ओपन करते हैं a प्लस b के फॉर्मूले से. तो EM1 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस EM2. अब देखिएगा साइन a प्लस बी से हम चेंज कर रहे हैं इसको, तो साइन a cos b प्लस cos a साइन b. ये हमने यहां पर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. नाउ इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो E M1
साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस EM2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी कोस फाई प्लस EM2 कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी साइन फाई। ओके, तो नाउ हियर द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी हम कॉमन लेते हैं, तो EM1 प्लस EM2 cos of phi, this one sin kx minus omega t plus EM2 sin phi cos kx minus omega t. Okay, so now we converted. Up here we see that this equation depends on time, this term depends on time, this one, okay, you see here, and this is also depends on time, but these are not depends on time. तो एक तरह से जो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, they are treated as a constant. तो यहां पर जो आपकी ये टर्म्स हैं EM1 प्लस EM2 cos phi और EM2 sin phi, these are the constant या they are treated as the constant. तो हम यहां लिखते हैं let EM1 प्लस EM2 cos phi equals to EM cos theta and EM2 sin phi equals to EM sin theta. Okay, तो EM1 plus EM2 cos phi equals to EM cos theta and EM2 sin phi equals to EM sin theta. Now put this value in the equation. So E equals to EM cos theta sin kx minus omega t plus EM2 की जगह पर EM sin theta cos kx minus omega t. ओके, तो इसको हम और कन्वर्ट कर देते हैं, देन EM sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये हमारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आ गई, E इक्वल्स टू EM sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा। तो EM तो क्या है यहां पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, EM is resultant amplitude and theta is phase angle. तो ये E तो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स का, और थीटा क्या है आपका फेज एंगल। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस के अंदर एक तो हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे और एक फेज डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर ये रिजल्टेंट की इक्वेशन आ गई है, E इक्वल्स टू EM साइन kx माइनस ओमेगा टी, जिसमें EM रिजल्टेंट है, तो मुझे इसको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस का इनको नाम दे देते हैं हम, जस्ट सपोज दैट 3 and 4। तो हम यहां पर लिखते हैं स्क्वायरिंग इक्वेशन 3 and 4 एंड एडिंग देम। तो इक्वेशन 3 और 4 को हम स्क्वायर करते हैं और उन्हें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर करके हमें इन्हें ऐड करना है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके ऐड करते हैं। तो देखिए क्या आता है, तो ये स्क्वायर हुआ आपका EM1 प्लस EM2 cos phi का होल स्क्वायर प्लस EM2 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi इक्वल्स टू, राइट साइड को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, ओके। तो यहां से हम EM स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, इक्वल्स टू इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं,
प्लस 2em1 em2 cos phi। अब इस जगह पे जहां पे हमारे पास में और प्लस कौन चल रहा है, प्लस em स्क्वायर em2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, अब ये वैल्यू तो क्या हो गई तुम्हारी 1, तो em स्क्वायर इक्वल्स टू em1 स्क्वायर, यहां से em2 स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, देन 2em1 em2 cos 5, ये 1 हो गया आपका। तो em स्क्वायर इक्वल्स टू em1 स्क्वायर em2 स्क्वायर 2em1 em2 cos of 5, देन em इक्वल्स टू em1 स्क्वायर em2 स्क्वायर 2em1 em2 cos of 5। तो ये क्या आ गई आपकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन हमने यहां पर फाइंड आउट कर ली, दैट इज em इक्वल्स टू em1 स्क्वायर प्लस em2 स्क्वायर प्लस 2em1 em2 cos 5। अब यहां पर ये तो रिजल्टेंट की आई है, मुझे फेज एंगल भी फाइंड आउट करना है जैसा मैंने बताया इंटरफेरेंस में। और अगर आपको ध्यान हो तो ये हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था वेक्टर्स में 11th क्लास में, तो सेम पैरेललोग्राम लॉ ही है ये। ठीक है, तो अब यहां पर हम फेज एंगल निकालते हैं। तो फेज एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 4/3, 4 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा tan थीटा इक्वल्स टू em2 sin phi अपॉन em1 प्लस em2 cos phi। तो हियर थीटा इक्वल्स tan इनवर्स em2 sin phi अपॉन em1 प्लस em2 cos phi। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फेज एंगल, ये जो हमने यहां पर निकाला है ये आपका आ गया फेज एंगल। तो अब दो चीजें हमारे सामने आ गई, ये तो फेज एंगल हो गया, और मैं वापस उस इक्वेशन को लिख देता हूं जो अभी हमने निकाली थी, em इक्वल्स टू दिस वन। तो ये हमने दोनों इक्वेशंस लिख दी हैं यहां पर, 2em1 em2 cos of phi। ठीक है, तो इसके बाद में अब हम आगे देखते हैं इसके स्पेशल केसेस को। तो स्पेशल केसेस के अंदर नहीं, पंकज 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 करता हूँ, बता रहा हूँ अभी, आप थोड़ी देर आओ। तो यहाँ पे थीटा आ गया, थीटा इज द फेज एंगल जो हम लोगों ने निकाल लिया है। अब इसके बाद में एक चीज और हम देखते हैं यहाँ पर, ये आपका एम्पलीट्यूड आ गया, ये आपका फेज एंगल आ गया। अब इस जगह पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं इंटेंसिटी को। तो इंटेंसिटी को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हम लिखते हैं यहां कि वी नो दैट I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू em स्क्वायर, यानी जो इंटेंसिटी है वो किसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने फाइंड आउट किया है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो यहां I इक्वल्स टू के em स्क्वायर, तो यहां से एक के em स्क्वायर आ गया, तो I इक्वल्स टू के ई
m1 स्क्वायर e m2 स्क्वायर 2 e m1 m2 कोस फाई। ठीक है, इसे सेपरेट कर देते हैं तो k e m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर और 2 अंडर रूट k e m1 e m2 कोस फाई। ठीक है, अब यहां पर हम क्या जानते हैं कि I इक्वल्स टू तो है k e m स्क्वायर, तो ये k e m1 स्क्वायर मिलकर क्या बनेगा तुम्हारा I1, k e m2 स्क्वायर मिलकर बनेगा तुम्हारा क्या I2, और ये बनेगा तुम्हारा अंडर रूट I1 और अंडर रूट I2। कॉस ऑफ फाई। तो ये फाइनली ये जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन किसकी आई है तुम्हारी इंटेंसिटी की। तो I इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कोस फाई। तो अब तीन इक्वेशंस हमारे पास में आ गई, एक तो है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक है फेज एंगल की और एक है इंटेंसिटी की। ओके, तो अब कुछ स्पेशल केसेस हम यहां पर लेते हैं। स्पेशल केसेस में सबसे पहला केस जो हम लेते हैं वो लेते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जब हम बात करते हैं तो हम लोगों ने पहले भी कहा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो इंटरफेरेंस होता है जिसके अंदर वेव सेम फेज में होती है। तो द इंटरफेरेंस in which phase difference becomes phi equals to 0, 2 pi, 4 pi and 2n pi। ठीक है, phi equals to 0, 2 pi, 4 pi and 2n pi. This is your phase difference for the constructive interference. Got it? तो here इन सब के लिए अगर हम बात करें 0 के लिए, 2 pi के लिए, 4 pi के लिए, तो इन सब के लिए cos phi की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1। तो जब हम cos phi की वैल्यू 1 पुट करते हैं इक्वेशन में तो em इक्वल्स टू em1 स्क्वायर em2 स्क्वायर 2em1 m2। ठीक है, तो फाइनली ये क्या हो गया तुम्हारा E इक्वल्स टू em1 प्लस em2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया em1 प्लस em2, तो ये तुम्हारा em आ गया। ओके, इसी तरह से जब हम फेज एंगल की बात करेंगे तो फेज एंगल क्या होगा इसके लिए, तो फेज एंगल निकालते हैं थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू, अब देखें फाई की जगह यहां पर आपने 0 पुट किया तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो टोटल टर्म ही 0 हो गई आपकी। तो थीटा इक्वल्स क्या हो गया tan इनवर्स 0, तो टोटल क्या आ गया 0। ओके, इसी तरह से अगर हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इंटेंसिटी के अंदर क्या होगा I इक्वल्स टू I1 I2, ये हो गया 2 अंडर रूट I1 I2, cos फाई तो 1 हो गया, तो ये किसका होल स्क्वायर बना, ये होल स्क्वायर बना आपका अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का, ये आपका होल स्क्वायर हो गया। I इक्वल्स टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर हम कहते हैं कि I1 इक्वल्स I2 इक्वल्स I0 अगर हम मान लें, इफ I1 इक्वल्स I2 इक्वल्स I0 अगर हम कंसिडर कर लेते हैं, कोई भी एक सेम इंटेंसिटी कंसिडर कर लेते हैं, तो I इक्वल्स टू रूट I0 का होल स्क्वायर
दैट इज 2 रूट आई जीरो, तो आई इक्वल्स कितना आ गया 4 आई जीरो। तो दिस इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम। यहां पर इस इंटेंसिटी को क्या माना जाता है, मैक्सिमम माना जाता है। और जब हम पाथ डिफरेंस भी निकालने साथ के साथ, तो चार चीजें निकाल चुके हैं। अब हम पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला कल हमने निकाला था, पाथ डिफरेंस, तो डेल्टा इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई, फेज डिफरेंस कितना है 2n पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो डेल्टा कितना आ गया n लैम्डा। तो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में आपका जो ये आया, ये पाथ डिफरेंस आ गया। ओके, इसी तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सेकंड केस जब हम लेते हैं, तो फॉर द सेकंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में फाई जो होगा आपका पाई, 3 पाई, 5 पाई डॉट 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 2n प्लस 1 पाई। ओके, तो इस कंडीशन के लिए जो कोस फाई आएगा वो आएगा -1। ठीक, अब यहां पर जब हम इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, कोस फाई की वैल्यू क्या हो गई यहां -1, तो ये हो गया तुम्हारा ठीक है। इफ I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I0, देन I इक्वल्स क्या हो गया 0, यानी इंटेंसिटी क्या आ गई तुम्हारी मिनिमम। अब यहां पर भी इसका पार्ट डिफरेंस निकाल लो। तो पार्ट डिफरेंस डेल्टा इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई 2n प्लस 1 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो ये पार्ट डिफरेंस आ गया आपका किसका, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। तो यहां पर हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों तरह के इंटरफेरेंस देख चुके हैं। अब यहां जब हम एक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि इंटरफेरेंस के अंदर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है, तो वो हम देखते हैं। देखो, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंटरफेरेंस। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरफेरेंस की जब हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं व्हेन टू सोर्सेज आर कोहेरेंट देन फेज डिफरेंस डज नॉट चेंज विद टाइम एंड स्टेबल इंटरफेरेंस इज प्रोड्यूस्ड। श्योर बात है कि जब कोई सोर्सेज कोहेरेंट होंगे तो फेज डिफरेंस चेंज नहीं होगा, और फेज डिफरेंस चेंज नहीं हुआ तो उस कंडीशन में स्टेबल इंटरफेरेंस हमें गेन होगा। ठीक है, व्हेन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्लेस करेगा तो उस कंडीशन में इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्लेस करेगा तो उस कंडीशन में इंटेंसिटी मिनिमम होगी। ठीक है, तो यहां पर हम ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तो मैक्सिमम, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिनिमम, यानी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। भाई एक में तो मैक्सिमम जा रही है, एक में मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, तो इसका मतलब उसका कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। 4i0 0, 4i0 0, तो कोई 4i0 से मिलके कोई 3i0 नहीं बची, 2i0 नहीं बची, यानी मैक्सिमम जानी है तो 4i0 ही जाएगी, मिनिमम आनी है तो 0 आएगी, यानी कोई भी लॉस नहीं हुआ है। तो कह सकते हैं हम कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी इसके कंडीशन में हम ये कहते हैं कि इंटरफेरेंस की कंडीशन में जो टोटल एनर्जी होती है वो ऑलवेज कंजर्व्ड होती है। और जब हम यहां पर इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, दिस वन, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, पाई, -2 पाई, -3 पाई एंड द -4 पाई। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, देन दिस टाइप एंड दिस। ओके, नाउ दिस एंड दिस। तो ये यहां पर जो वैल्यू आई है आपकी, ये आई है मैक्सिमम, और ये कौन सी है, मिनिमम। तो यानी इस ग्राफ के अंदर जो होता है वो एनर्जी
कंजर्वेशन होता है, एनर्जी ऑलवेज क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो इस तरह से हम एनालिटिकल ट्रीटमेंट करते हैं किसका, इंटरफेरेंस का। ओके बेटा, थैंक यू।